लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी है, लाइफ टाइम मोदी को। डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उस मंदबुद्धि से गुजरात को कहां से कहां वो 2000 के बाद लेके गया, वो सब आपके सामने है। None other than the Mumbai Indians captain and BCCI's Team India player Hardik Pandya. I'm standing outside Vivanta Greens, which belong to none other than the Mumbai Indians captain and BCCI's Team India player Hardik Pandya. लेकिन सवाल ये नहीं है कि हार्दिक पांड्या की कल मुंबई इंडियंस आईपीएल से बाहर हो गई। सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन बाहर हो रहा है। 2024 के चुनाव में हमारे साथ में कुछ बड़े लर्नर्ड लोग मौजूद हैं, यंगस्टर्स भी हैं। लेट्स आस्क कि हार्दिक पांड्या के घर में लोग क्या कहना चाहते हैं। सर, डू यू वॉच क्रिकेट? यस। हार्दिक पांड्या, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, Hardik Pandya, Narendra Modi. नरेंद्र मोदी। Kishore Mehta ji, who do you think is a more powerful candidate today as far as the Prime Minister ambitions is concerned? Narendra Modi, Rahul Gandhi. Definitely Narendra Modi. And why do you think so, sir? Narendra Modi because of his management. His management? Yeah. And but if you have to count me 5 development works that have taken place in Baroda, which are those? ये कंस्ट्रक्शन वाइज भी देखो, इंडस्ट्री वाइज भी देखो, हर एक फील्ड में काम हो रहा है। आप क्या काम करते हैं सर? सर मैं सीबीआई में हूँ। सीबीआई में। हाँ। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं यहाँ पे डेवलपमेंट के मुद्दों की, तो डेवलपमेंट में हमें दिखा क्या है जो आपको काउंटेबल हैं चीज़ें? नहीं, डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी है, वो भी सब देखना पड़ता है ना। व्हाट्स योर नेम? Pathin Desai. पतन देसाई। Yes. पतन कम है। सो कभी हार्दिक पांड्या से भी इधर मुलाकात हुई Yes. इस घर में? Yeah. नीचे भी. अच्छा हुई। Yeah. So how do you find him? Yeah, he's great guy and You think that which party do you think is in a better position, BJP or Congress? BJP because people support them more over here. What are the 5 things that you see around in Baroda which you never saw during previous regimes when Congress was in power at center? I don't know about previous regimes, but I can say about BJP. Like I've seen development in infrastructure. Such as? And if you go over Harni, you can see the canal road is all covered in solar panels. So that's a development. Then this construction of the new Baroda airport, which is now an international airport as well. Then other developments as well in this industrial sector as well. Acha. Yeah. So you think that overall development has taken place? Yeah, why As not? far as welfare schemes are concerned, you think that welfare schemes भी आप लोगों तक पहुंची कोई? Welfare schemes, like we don't lie under any criteria, so I don't have any knowledge about welfare schemes. ओके। Yeah. सो बड़ी सारी कई सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जो गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, चाहे वो जीएसटी हो या सोशल वेलफेयर स्कीम्स हों, यूजिंग स्टार्टअप और एनीथिंग दैट हैव यू सीन एनी ऑफ योर friends or that otherwise that you have been beneficiary of? Yeah, the government provides startup funds. Like हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे initiatives हुए which is funded by government for startup कौन funds. सी यूनिवर्सिटी आपकी? Navrachna University. Nav? Navrachna University. Navrachna University. Yes. Let's ask your mom as well on what she says. Let's enter these places. This home belongs to Mr. Pratik Desai and Kishore ji. Ma'am, अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट में, if you can tell us why do you think if at all BJP is in a consolidated position to win this election, आपके लिए 4 कारण क्या रहेंगे और क्यों? सबसे पहले तो मुसलमान कम्युनिटी है, बराबर ना। ये जो गोधरा कांड हुआ था वो क्या था? आपके शहर से कुछ थोड़ा दूर है। सब मेरा जन्म वहीं का है, फतेहपुरा, कोयली फल्या, मेन जहाँ पे ये धमाल होती थी। हम सिंधियों को वहाँ ही मकान मिले थे जब पाकिस्तान से आए थे ना, तो ये मुसलमान मकान खाली करके गए थे ना, उन मकानों में हमको मिला था। पानी गेट एरिया थी हमारी, सबसे ख़राब में ख़राब एरिया, बराबर। ये बाबरी मस्जिद जो घिरी थी ना, उसके बाद क्या क्या हुआ था आप लोगों के साथ? सवाल ही नहीं है, बड़ोडियंस के साथ, पूरे गुजरात के साथ हुआ था। 2001 में ये जो गोधरा कांड हुआ, उसमें क्या हुआ? जब से मोदी आया तब से इनका आवाज़ बंद कर दिया गया। गुजराती में कहूँ तो मेथी पाक खबड़ायू। उसके बाद मोदी फेमस हो गया, और आज की तारीख में पूरे गुजरात का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो ब्लाइंड फेथ है मोदी पे। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी के चेंजेस तो आप ही देख रहे हैं। और हर बात में बीजेपी आगे है ऐसा भी नहीं है, उसके लिए सफ़र भी हमको करना पड़ता है। एक बंदा कहाँ तक पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उस मंदबुद्धि से
गुजरात को कहाँ से कहाँ वो 2000 के बाद लेके गया, वो सब आपके सामने है। वो कोई बात छुपी हुई नहीं है। रोड्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ देखा जाए, कहीं भी जाओ। आज पावागढ़ मंदिर मैं चल नहीं सकती हूँ, अभी हिम्मत करके मैं पहुँच गई। मैंने बोला मोदी को वोट देने से पहले मुझे पावागढ़ देखना है कि ज़मीनी हकीकत क्या है पावागढ़ की। तो क्या मिला फिर मैम आपको? वो तो आप जाइए ना, आप जाइए, आप खुद फील कीजिए पहले की क्या कंडीशन थी, अब की क्या है। ये नर्मदा सरोवर पे ये अपना बनाया है स्टैचू ऑफ ये यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू देखने जैसा है ना। क्या कांग्रेस कर सकती है? किसी का उन्होंने कुछ भला किया है? इतने सारे घोटाले आपके सामने हैं, आप तो देख रहे हैं ना। तो आप बड़ौदा में खुश हैं सरकार से? और जब नरेंद्र मोदी जी भी आए थे 2014 में आपके पहले एमपी बन के, तब बनारस से भी लड़े। हाँ। आज आपको लगता है कि उनको दोबारा आना चाहिए था? आप दोबारा से खुश होते? लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी है, लाइफ टाइम मोदी को। अभी इससे आगे हम क्या बोलें? अगर कुछ दान भी करना है ना, तो अपनी ज़िंदगी में से 24 घंटे उसको दान करो बंदे को, कि मेरी एज का भगवान 24 घंटे मोदी की उम्र बढ़ा देना, कम से कम मरने से पहले कुछ तो करके जाएगा। मैं क्या करूँगी? घर का काम यही सब करूँगी ना। वो बंदा अगर 24 घंटे रहा जिंदा तो और कुछ काम कर सकता। क्या नाम है मैम आपका? मंजू मटाई। मंजू मटाई जी। एंड यू हैव चिल्ड्रन हियर हु स्टे विद यू? नहीं, वो तो उनको यूएस भेज दिया। वो बिकॉज ऑफ ये जो आपका आरक्षण चल रहा है ना, ये गरीबों को आरक्षण दो, इसको हम फुटपाथ से उठे हुए लोग हैं सर, सिंधी हैं। सिंधी पहले पखाड़े निकालते थे। हमारे पिताजी ने क्या क्या किया वो हमको पता है। हमारी जो बड़ी वाली चाची थी, पाकिस्तान से आए ना सर, ये रात को लैम्प जला के, वो गासलेट वाला कैरोसिन वाला लैम्प जला के उस पर ये लोग कपड़े सिलाई करते थे। वो सिलाई करके लोगों को देते थे। वहाँ से इन लोगों ने रुपया 2 रुपया कमा कमा के अब सिंधी कहाँ पहुँच गया। और बेटे को तो यहाँ रखना ही नहीं था। अगर ये भी फॉरेन चला गया ना, माँ बाप के लिए तकलीफ़ होगी, मुझे भी दुख होगा कि मेरा एक फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही इज़ माई फ्रेंड, हाय हल्लो इससे होती रहती है, वो भी चला गया तो मैं ज़्यादा सबसे खुश होऊंगी कि कहीं ना कहीं उसने डॉलर तो बनाए। अच्छा मैम, एक बात पूछता हूँ, बड़ौदा में आप लोगों को क्या खूबसूरत प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जो आपके दिल को छू गए और आज आप याद रखते हो कि दीज आर द प्रोजेक्ट विच हैव टच्ड द कॉर्ड्स ऑफ माई हार्ट? अभी जैसे अपना सुख सागर का बनाया है, और भी उन्होंने तालाब वलाब सब अच्छे किए हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इससे जो पहले आई थी वो रंजन मेन भट्ट, बहुत बेकार औरत थी, वर्स्ट में वर्स्ट औरत थी रंजन मेन भट्ट। विच पार्टी? बीजेपी। अच्छा। जो मोदी की वैकेंसी खाली हुई ना, उस पर उन्होंने उसको बिठा दिया, रंजन मेन भट्ट। अच्छा। और इस बार तो मैंने फैसला कर दिया कि अगर तीसरी बार उसको बनाया गया, ऑब्वियसली नोटा को वोट करके आऊँगी। तो मोदी को परसेंटेज का पता तो चले कि लोग नोटा पे भी चले गए। The towering structure, the imposing and forbidding gates, the forbidding iron gates that you see behind me belong to the palace of Sayaji Gaikwad, the ruler of Baroda. And today he has been represented by the King Samar Singh Gaikwad. As I come here in Baroda city, where 2014, where in 2014 Prime Minister Narendra Modi contested, and it was his one of the Lok Sabha seats at that time. He may have vacated, but still today it's this individual, that is Narendra Modi, who remains the most popular leader. There may be a new candidate here, Dr. Joshi, who is contesting. But let me tell you, when I speak to locals here in this city about the campaigns of the two political parties, that is BJP and Congress, of course you see the roads here, they look absolutely beautiful. And let me tell you that I am going to travel to Bharuch, from where the cricketer Munaf Patel once played for India's World Cup. And you can see, of course, these people also who guard the city, they seem to be very upbeat and buoyant about the BJP here. After all, Modi was always a popular leader in this part of India. धीरेन्द्र जी, क्या नाम है पूरा आपका? धीरेन्द्र गज्जर। धीरेन्द्र गज्जर। गज्जर। अच्छा, तो बड़ौदा में ही आप रहते हैं? एंड व्हाट डू यू डू? क्या काम करते हैं सर आप? मैं एज अ साइट इंजीनियर हूँ। साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है। तो अगर आपने तो बड़ी सरकारें उठती बैठती देखी हूँ, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 33 साल। 33 साल। तो आज आपको लगता है कि भाजपा मजबूत है या कांग्रेस आ सकती है?
नहीं भाजपा भाजपा? या ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या कारण है? उन्होंने जो विकास किया हुआ है, मतलब जो प्रोग्रेस दिख रहा है, तो बेसिकली कभी अंदर जाने का मौका हुआ? अंदर मतलब कहाँ, लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर? हाँ, नहीं गया। नहीं जा पाए? नहीं गया। आपको पता है राजा का नाम? हाँ, सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़। और उनके अब जो आगे वंशज चल रहे हैं, दो थे। समर सिंह गायकवाड़। हाँ सर। तो बड़ौदा में क्या आपको अच्छा लगा जो डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ? गैस की पाइपलाइन आई, रोड आया, गवर्नमेंट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। सुधार काफ़ी आया है काम में, यस, विकास हुआ आपको लगता है? 100%। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ से दोनों सरकार, जब वो थी तब भी प्रोग्रेस चल रहा था, ये थी तब भी प्रोग्रेस चल रहा है। वो मतलब कांग्रेस और उसके बाद ज़्यादा अच्छा भाजपा। किसने किया? भाजपा। ओ, कांग्रेस ने नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने भी किया है, बट लेकिन ज़्यादा नहीं। कंपैरिजन के हिसाब से भाजपा ज़्यादा है। तो आप लोग चाहेंगे कभी मोदी जी दोबारा आए या नहीं, बनारस से ही लड़ें? नहीं, ऑफ कोर्स यार, मोदी जैसा कोई नहीं है। मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी इज बेस्ट। I'll keep bringing you these nuggets to bring you the excitement from the soil of Gujarat before May 7. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ